Hello students, myself Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਮਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਦਰਾ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਰਥ, ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਦਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। यानी अर्थशास्त्र अपन ये सिखाता है भी जो भी अपने को मुद्रा है जो भी अपने को पैसा है आप उनकी सही तरीके नाल वरतों जिहड़ी है वो किवें कर सकते हैं ते आदियां वध तो वध जरूरतां जिहड़ियां ने उन्हां नूं आपां पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपां ये सोचीए भी आपां अपनियां सारियां दियां सारियां जरूरतां पूरियां कर लवांगे तो कदे भी संभव नहीं हैगा। कदे भी किसी भी व्यक्ति दे कोल इन्ने पैसे नहीं हो सकते जो अपनी सारिया जरूरतां जिहड़ियां ने वो पूरा कर लवे। तां पैसे हमेशा घट हुंदे ने, जरूरतां हमेशा ज़्यादा हुंदियां ने। फिर की हुंदा है भी जिहड़े अपने कोल पैसे हुंदे ने उन्हां दे आपां कई तरीके नाल उन्हां दी वरतों कर सकदे हां। तां इकनॉमिक्स आपां नूं उस चोण दी समस्या दा हल करन दे तरीके जिहड़ा है वो समझाती है। मतलब अगर आपां हमेशा तो लैके हमेशा गल करिए तां की होएगा, आपां यही कह सकते हैं भी पैसा जिहड़ा है वो घट है। हुण असल च क्वेश्चन उठा कि पैसा हुंदा की चीज है, आपां किस चीज नूं पैसा कह सकते हैं ते किस चीज नूं पैसा नहीं कह सकते। कि मैं इस मार्कर नूं पैसा कह सकदा, कि मैं इस स्पेक्स नूं पैसा कह सकदा, कि मैं इस शर्ट नूं पैसा कह सकदा, कि मैं इस बोर्ड नूं पैसा कह सकदा या किसी पंखे नूं पैसा कह सकदा। तां अपने सामने बड़े सारे सवाल आएंगे भी दुनिया दे विच जिन्नियां भी चीज़ां ने कि मैं उन्हां नूं पैसा कह सकदा या नहीं कह सकदा। आपां किसी नूं चैक देने आ कि मैं उस चैक नूं पैसे दे सकदा, आपां डिमांड ड्राफ्ट बनवाने आ कि आपां उस डिमांड ड्राफ्ट नूं पैसे कह सकदे आ। अपने पैसे बैंक दे विच जमा पए ने कि मैं उन्होंने पैसा कह सकदा। तां बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो अपने कोल हैगियां ने। आपां हुण इस चैप्टर दे विच यही देखांगे भी आपां किन्ना चीज़ां नूं पैसा कह सकते हैं ते किन्ना चीज़ां नूं पैसा नहीं कह सकते। सब तो पहला तो आपां मुद्रा दा अर्थ देखांगे कि मुद्रा है की चीज़। हुण अगर आपां गल करिए तां किसी जमाने दे विच की हुंदा सी, जिहड़े चांदी दे सिक्के ने वो चलदे सी, फिर तांबे दे सिक्के चलने शुरू हो गए, फिर उहदे विच मोहरे वाले सिक्के जिहड़े ने वो चलने शुरू हो गए, फिर उस तो बाद जिहड़े ने वो जिंक दे सिक्के आन लग पे, फिर नोट आए, फिर उस बाद आप कह लो जी हुण तां आपां नोटां दी लोड़ ही नहीं है, हुण तां एटीएम कार्ड आ गए ने, डेबिट कार्ड
ਆਪਾਂ ਪੇਟੀਐਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੀਮ ਜਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਪੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਸ ਨੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ, ਮੁਦਰਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਲੋਕ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਨੋਟ ਛਪਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੇਟੀਐਮ ਤੇ ਭੀਮ ਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਪੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੁਦਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 버ਗਰ ਖਾਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਸਾ ਖਾਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਰ ਬਾਈਕ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ही ये कहा जाता सी भी एक पिंड के जिहड़े लोग ने वो अपने आप दे विच आत्मनिर्भर हुंदे सी। मतलब एक पिंड के लोग जिहड़े ने वो अपनियां जरूरतां जिहड़ियां ने वो आप ही पूरीआं कर लैंदे सी। मतलब देखो जदों आपां ये कहा भी हरेक बंदे की जिहड़ी जरूरत है वो खान पीन दे नाल संबंधित है, तां एक पिंड के लोगों की जो जरूरत है वही जरूरत जिहड़ी है वो दूजे पिंड के लोगों की है। अगर एक पिंड के लोग जिहड़े ने उन्हां नूं जिंदा रहने वास्ते कणक चाहिए है, चावल चाहिए ने, सब्जियां चाहिए ने, ठीक है, वही जरूरतां दूजे पिंड दीयां ने। तां की हुंदा सी भी एक पिंड के लोग जिहड़े ने वो आपस दे विच ही आपणियां जरूरतां जिहड़ियां ने वो पूरा कर लैंदे सी। यानी कि जिहड़ा लकड़ दा काम करन वाला है वो लकड़ दा काम कर दिंदा सी, जिहड़े लोहे दा काम करन वाला है वो लोहे दा काम कर दिंदा सी। किसान जिहड़े ने वो कणक उगा लैंदे सी, सब्जियां उगा लैंदे सी, चावल उगा लैंदे सी, ठीक है। जिहड़ा कपड़े बनाने वाला है बुनकर वो कपड़ा बना दिया करदा सी। कहने का मतलब की है भी ये सारे जिहड़े ने वो एक दूजे की मदद जिहड़ी है वो करया करदे सी। इहदे नाल की हुंदा सी भी जिहड़ा भी किसान है वो जदों भी अपनी फसल उगांदा सी तां इहदा मतलब ये होया भी एक किसान जिहड़ा है जदों वो अपनी फसल उगांदा सी उन्हों फसल उगाने वास्ते इन्हां बहुत सारे लोगों की जिहड़ी जरूरत है वो रहिंदी सी। तां ये सारे लोग की करदे सी पूरा साल किसान की मदद करते रहंदे सी। जिहड़ा लक्कड़ वाला है वो किसान वास्ते लक्कड़ का काम कर दिंदा सी, जिहड़ा लोहे वाला है वो किसान वास्ते लोहे का काम कर दिंदा सी। तां ये सारे लोग जिहड़े ने ना ਇਹ किसान की मदद करते सी। किसान की करता सी इन्हां सारियां दी मदद दे नाल फसलां उगांदा सी। जदों उनकी फसल आ जाती सी फिर वो ये देखदा सी कि मैं किहड़े बंदे कोल किहड़ा किहड़ा जिहड़ा है वो काम करवाया है। तो की करदे सी सारियां नूं उस हिसाब दे नाल जिहड़ा है कणक दे देनी, या उन्हें चावल उगाए हैं तो चावल दे देने, या उन्हें सब्जियां उगाइयां ने तो सब्जियां दे देनियां। यानी ना तो पैसा लिया जाता सी ते ना ही पैसा दिता जाता सी। याद करो आपां दो खेतरी अर्थव्यवस्था मॉडल दे विच जिहड़ा है ऐसे वस्तु वटांदरा प्रणाली की गल कीती सी जदों आपां वास्तविक प्रवाह जिहड़े ने उन्हां दी गल कीती सी। आपां कहा सी कि वास्तविक प्रवाह दे विच की हुंदा है जिहड़ा परिवार खेतर है वो अपने उत्पादन दे साधन जिहड़े ने वो किहनूं दिंदा है, वो जिहड़ा उत्पादक खेतर नूं दे दिंदा है। उत्पादक खेतर जिहड़ा है वो उत्पादन करांदा है, उहदे बदले वो उत्पादन किहनूं दे दिंदा है, परिवार खेतर नूं जिहड़ा है वो दे दिया करदा है। मतलब ना तां उत्पादक खेतर परिवार खेतर कोलों पैसे लैंदा, ना परिवार खेतर जिहड़ा है वो उत्पादक खेतर कोल पैसे लैंदा। सारे लोग जिहड़े ने वो की करनगे वस्तुआं ते सेवावां दा लैन देन करके ही अपनी जरूरतां जिहड़ियां ने वो पूरा कर लिया करदे सी। मैं अगे एक गल कही भी एक पिंड दे जिहड़े लोग ने उन्हां दी जरूरतां खान पीन नाल संबंधित ने, दूजे पिंड दीयां जरूरतां जिहड़ियां ने वो खान पीन दे नाल संबंधित ने, तीजे पिंड दे लोकां दीयां जरूरतां भी जिहड़ियां ने वो खान पीन नाल संबंधित ने। तक सारे पिंडां दीयां जरूरतां जिहड़ियां ने वो खान पीन नाल संबंधित जिहड़ा है वो होया करदियां सी। एक पिंड दे जिहड़े लोग ने वो की करदे सी वो अपनियां जरूरतां जिहड़ियां ने वो आप ही पूरा कर लिया करदे सी। उन्हां नूं दूजे पिंडां दी कोई भी लोड़ जिहड़ी है वो नहीं हुंदी सी। मतलब आपां ये कह सकदे हां भी एक पिंड जिहड़ा है वो अपने आप दे विच जिहड़ा है एक आत्मनिर्भर इकाई होया करदी सी। मतलब वो अपने आप दे विच इंडिपेंडेंट हुंदा सी, उहनूं दूजे पिंडां दी कोई लोड़ नहीं सी। सोच के देखो अगर एक पिंड नूं दूजे पिंड दी कोई लोड़ नहीं है तो दूजे पिंड नूं पहले पिंड की कोई लोड़ नहीं है। तो ये सारे जिहड़े ने की ने आत्मनिर्भर ने। अगर सारे पिंड आत्मनिर्भर होया करदे सी तो सारे देश भी जिहड़े ने वो आत्मनिर्भर होया करदे सी। एक देश नूं दूजे देश की जिहड़ी है वो कोई लोड़ नहीं होया करदी सी। तो इस करके व्यापार जिहड़ा है वो बहुत घट हुंदा सी। ज़्यादातर जिहड़ियां चीज़ां ने वो लैन देन दे विच ही हो जाया करदियां सी, जिस करके जिहड़ी एक वस्तु वटांदरा प्रणाली है ये जिहड़ी अर्थव्यवस्था दे विच चलदी सी उहनूं आपां सी इकोनॉमी दे नाम दे नाल जिहड़ा है वो जानदे हां। सी हुंदा है कमोडिटी, जिहड़ा अगला सी है
ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਤਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਇਕਨੋਮੀ, यानी कि मतलब की होया कमोडिटी की हुंदा है वस्तु, अगली कमोडिटी का मतलब की होया वस्तु, वस्तु अर्थव्यवस्था, मतलब एक अजिही अर्थव्यवस्था जिंदे च की होएगा वस्तुआं दा लेन देन जिहड़ा है वो वस्तुआं दे नाल जिहड़ा है वो हो जाएगा। जिवें मैं अगे एग्जांपल देती, एक किसान नूं की करना है, उन्हें फसल उगानी है, उन्होंने हल भी चाहिए है, उन्होंने बीज भी चाहिए ने, उन्होंने खाद भी चाहिए है, उन्होंने कोई लोहे का काम भी कराना है, तो किसान की करता सी सारा साल लोहे वाले को लोहे का काम करा लिया, लकड़ वाले को लकड़ का काम करा लिया, ठीक है, खाद वाले को खाद ले ली, बीज वाले को बीज ले ली, तो सारा साल उन्होंने को जड़ा है वो जड़ा सामान लिया करता सी। जदों उनकी फसल आंदी सी सारा ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ फसल ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ भुगतान कर ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, यानी कि वस्तु ਲਈ तो ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ वस्तु ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ वस्तु अर्थव्यवस्था ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ मैं एक तरह का मैं सेवा प्रदान करवाना, मैं टीचर हाँ, मेरा काम जड़ा है वो सेवावां देना है, मैं सेवावां दित्तियां उनके बदले मैनूं की होया तनख्वाह मिलेगी। हुण मेरी मर्जी है भी मैं उस तनख्वाह नूं भावें अज खर्च करा, भावें मैं 10 दिन बाद खर्च करा, तो भावें मैं महीने बाद खर्च करा। यानी इधर की हुंदा है भी अज दे जमाने च अगर मैं किसी बंदे कोल गया, मैं उन्हें क्या कि मैं मार्कर लेना है, तो मैं उन्होंने कोल मार्कर ले लिया, उनके बदले मैं उन्हें पैसे देते, हुण उनकी आमदन होगी। हुण ये जरूरी नहीं हैगा भी जिहड़ी आमदन उस मार्कर बेचण वाले नूं हुई है वो अपनी आमदन नूं हुणे ही खर्च करेगा, वो कहेगा जदों मैनूं लोड़ है, जदों मैनूं किसी चीज की जरूरत पेगी मैं उदों इस आमदन नूं खर्च करांगा, फिलहाल मैनूं इहदी कोई लोड़ नहीं है, कोई चीज नहीं मैनूं चाहिए, तो मैं आमदन जिहड़ी है या जो पैसा मैनूं मिलिया है मैं उहनूं जोड़ के जिहड़ा है वो रखण लग्या। पर जदों आपां वस्तु वटांदरा प्रणाली की गल करदे सी उहदे विच की हुंदा सी जिहड़ी खरीद ते वेच है वो की हुंदी सी वो इक्को समय ते जिहड़ा है वो होया करदी सी। मतलब कहण दा की है भी इहदे विच की हुंदा सी भी जिहड़ा खरीदार है वो अपने आप दे विच जिहड़ा है वो वेचदार भी हुंदा सी ते जिहड़ा वेचदार है वो अपने आप दे विच खरीदार भी होया करदा सी। कहने का मतलब की है भी अगर एक बंदा बाजार दे विच कोई चीज लेके गया तो क्यों लेके गया है, ताकि वो चीज जिहड़ी है वो मैं दे देंगा ते उहदे बदले मैं दूजी चीज जिहड़ी है वो ले लांगा। मतलब अगर आप कहिए भी एक बंदा जिहड़ा है वो बाजार दे विच कणक लेके गया, हुण बाजार च कणक लेके गया क्यों, क्योंकि उनका मकसद ये सी कि मैं कणक दे देंगा ते उनके बदले मैं कोई सब्जियां या चावल वो जिहड़े मैं ले लांगा। यानी की होया भी जिवें ही उन्हें की करना है दूजे बंदे नूं अपनी कणक देनी है, यानी कि दित्ती कणक की होया वेची, नाल दे नाल की हो जाना है उन्हें उनके बदले कणक दित्ती, उनके बदले चावल सब्जियां या फल फ्रूट जिहड़े ने उनके बदले ले लेने ने। मतलब जिवें ही वो चीज बेचेगा एक चीज देवेगा नाल दे नाल उनके बदले विच उन्होंने दूजी चीज जिहड़ी है वो मिल जाएगी। यानी खरीद ते वेच जिहड़ी है वो इक्को टाइम ते होएगी। हुण सोचो भी जिहड़ा बंदा कणक लेके गया वो कौन है, वो कणक दा वेचदार है, कणक नूं बेचना चाहता है, पर नाल दे नाल कणक दे बदले चावल जिहड़े ने वो खरीदना भी चाहता है। तां जिहड़ा खरीदार है वो अपने आप दे विच की होएगा एक वेचदार भी होएगा, ते जिहड़ा वेचदार है वो अपने आप दे विच एक खरीदार भी होएगा। क्यों, जदों वो कोई चीज बेचेगा, क्यों बेचेगा, क्योंकि उनके बदले विच वो कोई ना कोई चीज जिहड़ा है वो खरीदनी चाहता है। ते अगर कोई बंदा कोई चीज खरीद रहा है तो उनके बदले वो नाल दे नाल कोई ना कोई चीज है वो बेचना भी चाहता है। तो वस्तुआं ते सेवावां दी खरीद वेच जिहड़ी है वो की हुंदी सी नाल दे नाल जिहड़ा वो हो जाया करदी सी। अजकल दे टाइम दे तरह खरीद एक टाइम ते हुंदी है, वेच जिहड़ी है वो दूजे टाइम ते हुंदी है। तो जरूरी नहीं हैगा जिवें आप एक बड़ी सिंपल जी एग्जांपल लईए कि मैं कहां कि मेरे पापा दी इलैक्ट्रिसिटी दी दुकान है, उनदे च बल्ब पए ने, ट्यूब पईयां ने, स्विच पए ने, प्लग पए ने। हुण मेरे पापा ने की कीता होलसेलर तो ये सारियां चीज़ां खरीद लियां। हुण की होएगा, ये थोड़ी है कि जिवें होलसेलर कोल चीज़ां खरीदियां ते नाल दे नाल ये चीज़ां की होणगियां विक भी जाणगियां, पता नहीं कदों गाहक आएगा खरीदण वास्ते,
है वो इको टाइम ते जिहड़ा है वो होया करदी सी। हुण जिहड़ी एक खरीद वेच इको टाइम ते होया करदी सी, इहदे वास्ते की चाहीदा सी? इहदे वास्ते जो चीज़ दी लोड़ सी उहनूं आपां कहंदे आ कि जरूरतां दा दोहरा संयोग, ठीक है। तो इस चीज जिहड़ी है वो लोड़ पैंदी सी, जरूरतां दे दोहरे संयोग की लोड़ पैनी है। हुण इस जरूरतां दा दोहरा संयोग की चीज हुंदी है, इहनूं आपां इहनूं एक एग्जांपल नाल जिहड़ा है वो समझांगे। मान लो कि अपने को दो पर्सन ने, एक दा नाम ए है ते एक दा नाम बी है, दोनों कोल कनक है ते चावल है। आपां दो चीज़ां लैतियां, एक कनक ते एक चावल, ते दो बंदे ने ले ए ते बी। जिहड़ा ए बंदा है वो कहता है मेरे कोल कनक जिहड़ी है वो की है वो मौजूद है, ठीक है, ते मैनू चावल दी की है मैनू लोड़ है, ठीक। जिहड़ा बी बंदा है वो कहता है कि मैनू चावल दी जिहड़ी है वो मेरे कोल मौजूद ने ते मैनू कनक दी लोड़ है। हुण सोचो ये दोहरा संयोग होना चाहिए। दोहरे संयोग का मतलब की है कि अगर मैं कहां कि मेरा नाम ए है, फॉर एग्जांपल मैं ए तो अमित कर देना, बी तो मान लो मैं भोलू कर देना, तो अमित ते भोलू ने लेन देन कर दिया, की होएगा? जो चीज मेरे कोल मौजूद है, यानी मेरे कोल की मौजूद है? कनक। ता जो मेरे कोल मौजूद है दूजे बंदे नूं उनदी लोड़ होवे, यानी अगर मेरे कोल कनक है मौजूद है तो उस कनक दी जेड़े बंदे नाल मैं लेन देन करदा पिया उस बंदे नूं उस चीज दी लोड़ होनी चाहिए है। मतलब अगर मेरे कोल कनक हैगी है तो जेड़ा भोलू है ओनू कनक दी लोड़ होवे, तां मान लो कनक दी लोड़ हैगी है, ठीक है। फिर हुण मेरे कोल कनक मौजूद है, मैं कनक देनी है, उनके बदले मैं कुछ लेना दिता है। हुण मैनू की चाहिए? मैनू चावल दी लोड़ है। हुण मैं क्या कि जो मेरे कोल है दूजे बंदे नूं उनदी लोड़ होवे ते जिस चीज दी मैनू लोड़ है वो दूजे बंदे कोल मौजूद होवे। हुण ध्यान नाल समझो कि मैं बाजार दे विच गया, बाजार दे विच मैं बाजार च गया तो मैनू भोलू नाम दा एक बंदा मिल गया। तब मैं क्या भोलू नूं भी भोलू मेरे कोल कनक हैगी है, की तैनू कनक चाहिए? वो कहना हां जी मैनू कनक चाहिए, यानी देखो पहली जरूरत पूरी हो गई, ठीक है जी। पहला संयोग बन गया कि मेरे कोल कनक हैगी है, मैं उन्हें पूछा भी देख भाई मेरे कोल कनक हैगी है, कि तैनू कनक दी लोड़ है? वो कहना हां जी मैनू लोड़ है। मैं कहा ठीक है, मैं कहा मैं देख हुण मैं कनक देवांगा उनके बदले मैनू चावल दी लोड़ है। वो कहेगा नहीं मेरे को चावल तो नहीं है, मेरे को सब्जियां हैं। मैं कहा ना फिर नहीं मैं लेन देन करता। यानी हुण सोचो भी जिहड़ा संयोग जुड़िया वो दो नहीं जुड़े, वो की जुड़िया सिर्फ इको जुड़िया भी जिहड़ी चीज जिहड़ी मेरे कोल हैगी है दूजे बंदे नूं उनदी लोड़ तां हैगी सी, पर जिस चीज दी मैनू लोड़ सी वो उनदे कोल नहीं हैगी सी। नंबर 2 मैं एक बंदे नूं होर मिलिया, हुण मैं गया भी चल ऐं करदे आ, एक मैनू बंदा अजय मिल गया, मैं हुण अजय नूं पुछा भी अजय कनक मेरे कोल कनक मौजूद है, कि तैनू कनक दी लोड़ है? अजय कहता ना मैनूं तां कनक दी लोड़ ही नहीं हैगी। बस कहानी उत्थे ही खत्म हो गई, क्योंकि जो चीज मेरे कोल हैगी है अगले बंदे नूं उस चीज दी लोड़ ही नहीं, तो फिर वो मेरे नाल क्यों लेन देन करेगा? यानी मेरा लेन देन अजय नाल भी नहीं हो सकता। फिर मैनूं मिल गया राजन, तीसरा बंदा मिल गया, मैं राजन नूं पूछा भी राजन मेरे कोल कनक हैगी है, कि तैनू कनक दी लोड़ है? वो कहना हां मैनू कनक दी लोड़ है, यानी पहली जरूरत पूरी हो गई। दूसरी गल मैं कहा देख कनक मेरे कोल हैगी है, तैनू कनक दी लोड़ है, मैं तैनू कनक दे देना, पर मैनू कनक दे बदले चावल चाहिए ने, कि तेरे कोल चावल हैगे ने? वो कहेगा हां मेरे कोल चावल हैगे ने ते मैं चावल देने नूं भी तैयार हां। मतलब हुण दोनों चीज़ां जुड़नगियां तां जाके लेन देन होएगा, जे एक भी चीज विचों रहेगी तां लेन देन नहीं होना। कहने का मतलब की है भी जो चीज तुहाडे कोल मौजूद है दूजे बंदे नूं उनदी लोड़ होवे ते जिस चीज दी तुहानू लोड़ है वो दूजे बंदे कोल मौजूद होवे, अगर ये जरूरतां दा दोहरा संयोग लगेगा तां ही लेन देन होणगे। जे ये जरूरतां दा दोहरा संयोग ना बनया तां लेन देन नहीं होणगे। हुण हुंदा की सी भी आम तौर ते इस तरह
ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਦਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਦਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸੰਯੋਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, मतलब जिवें हुणे आपां गल कीती भी जेड़ा जरूरतां दा दोहरा संयोग है ये पूरा होना चाहिए। मतलब जिस चीज दी तुहानू लोड़ है वो चीज अगले बंदे कोल होनी चाहिए है ते जिस चीज जो चीज तुहाडे कोल हैगी है अगले बंदे नू उंदी लोड़ होवे तां ये दो चीज़ां जड़ियां ने ये जुड़नियां पॉसिबल ही नहीं हुंदियां सी। बहुत मुश्किल नाल तुहानू इह जिहा बंदा मिलदा सी जिस करके लेन देन जिहड़े ने वो बड़े घट हुंदे सी, जिस करके ये जिहड़ी वस्तु वटांदरा प्रणाली है इहनू छड्ड दित्ता गया। दूसरी गलती ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵਪਾਰ। ठीक है, व्यापार की होता है लेन देन करना, तो दोनों लेन देन कर रहे हैं। तो हुण इस लेन देन दी उन्हां नूं एक लागत चुकनी पैंदी सी। ਉਹ लागत की सी, पहली ਤਾਂ लागत हुंदी सी भाल दी लागत। भाल मतलब तलाश करना, ठीक है, मतलब उन्हां नूं एक ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। मतलब पहला ਤਾਂ एक ऐसा बंदा ਲੱਭੋ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। दूसरी जे भाल करनी पेगी तो जिन्नी देर तक वो बंदा तुहानू नहीं लभदा की करना पेगा, तुहानू उनका इंतजार करना पेगा, तुहानू उनकी उड़ीक करनी पेगी। तो इंतजार की लागत जिहड़ी है वो भी पैंदी है। देखो अपने आप दे विच किसी की उड़ीक करनी, अपने आप च किसी का इंतजार करना, ठीक है, वो अपने आप च एक लागत है। जिन्नी देर तक सोचो मेरे घरे मैनू चावलों की लोड़ है, ठीक है, मेरे को हैगी कनक है, मैं बंदा लभी जाना भी जिन्होंने मैं कनक दे देवा तो उनके बदले मैं चावल ले लवा तो मैं अपने घर दी जरूरतां पूरियां करा। हुण ऐ जिहा बंदा नहीं लभदा पिया। तां ऐ जिहा बंदा लभना, अपने आप च उस बंदे दी भाल करनी ते भाल करन जिन्नी देर ओह नहीं मिलदा उन्नी देर उनदी उड़ीक करनी, ये अपने आप दे विच जिहड़ी है एक लागत जिहड़ी है ओह होया करदी सी, जिहड़ी व्यापार करन वालियां नूं जिहड़ा है ओह बर्दाश्त करनी पैंदी सी। उस तो बाद थर्ड पॉइंट थर्ड है कि मुल दी समान इकाई दा ना होना। देखो एक्चुअली की हुंदा है अगर आपां अज दी टाइम की गल करिए, अज दे टाइम ते सारियां चीज़ां दा मुल यानी कि कीमत आपां किंदे च निर्धारित करदे हां, आपां उन्नू अपने देश की करेंसी दे विच जिहड़ा है वो डिसाइड करदे हां। जिवें अगर इंडिया किसी भी चीज की कीमत नूं निर्धारित करेगा तो किंदे च करेगा, रुपए दे विच, अगर अमेरिका करेगा तो अमेरिकन डॉलर दे विच, अगर जापान करेगा तो येन दे विच, अगर चीन करेगा तो युआन दे विच, ठीक है, अगर इंग्लैंड करेगा तो पाउंड दे विच, अगर ऑस्ट्रेलिया करेगा तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे विच। तो हर एक देश की करता है किसी भी चीज दा मुल किंदे च निर्धारित करता है, अपने देश की मुद्रा यानी कि अपने देश की करेंसी दे विच जिहड़ा है वो मुल निर्धारित करता है। जिवें अगर मैं कहां कि ये मार्कर जिहड़ा है वो हैगा जी 25 रुपए का ते आ बोर्ड जिहड़ा है वो हैगा 500 रुपए का। हुण इहदा मतलब
होएगा कि अगर मैं एक बोर्ड लेना है, हम बोर्ड 500 रुपए का है, आ मार्कर 25 रुपए का है, एना मतलब अगर मैं एक बोर्ड लेना है उनके बदले अगर मैं 25 मार्कर दे दिया तो 25 मार्कर दे हो गए 500 रुपए, उनके बदले मैंने एक 500 रुपए का बोर्ड जड़ा है वो मिल जाएगा, लेन देन आसान हो जाएगा। क्यों आसान होया? क्योंकि इस मार्कर का मुल भी किंदे च है, मुद्रा दे विच, इस बोर्ड का कोई मुल भी किंदे च है, मुद्रा दे विच। दोनों की जिहड़ी मुल की इकाई है वो की है, समान है, यानी इनका मुल भी मुद्रा च मापिया जा रहा है, इनका मुल भी मुद्रा च मापिया जा रहा है, दोनों की मुल नूं मापण की इकाई जिहड़ी है वो समान है, लेन देन आराम नाल हो जाएंगे। पर जदों आपां वस्तु वटांदरा प्रणाली की गल करते हैं उन्हें बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने वो पैदा हुंदियां सी। कोई चीज जिहड़ी है मान लो कणक हो रही है कि दुध हो रहा है कि कपड़ा हो रहा है कि चावल हो रहे ने, हर एक चीज नूं मापण दी इकाई अलग अलग है, यानी कोई चीज किलो च मापी जा रही है, कोई लीटर दे विच मापी जा रही है, कोई मीटर दे विच मापी जा रही है, सारियां चीज़ां अलग अलग इकाइयां च मापियां जा रही ने। तो फिर उन्हां दा आपस दे विच लेन देन जिहड़ा है वो किवें होएगा? अगर मैनूं कोई ये पूछे भी लै भी तेरे कोले कार है तो कार किन्ने दी, मैं कहूंगा 3 लाख रुपए दी, ठीक है। पर अगर मैनूं कोई ये कहे लै भी मैं तेरी कार लेना चाहना, उनके बदले मैं किन्ने पैसे देवां, मैं कहूंगा मेरी कार 3 लाख रुपए दी है, उनका मुल 3 लाख रुपए है, तो मैनूं 3 लाख रुपए दे दे ते कार ले जा। पर अगर मैनूं वो ये पूछे कि लै भी मैं तेनूं तेरी कार दे पिछे किन्नियां गावां देवां, या मैं तेनूं तेरी कार दे पिछे किन्ने घोड़े देवां, या तेनूं तेरी कार दे पिछे किन्नियां मज्झां देवां, या तेरी कार दे पिछे मैं तेनूं किन्ने बैड देवां, या तेरी कार दे पिछे मैं किन्नियां अलमारियां देवां, तो मैं किवें दसांगा? क्योंकि देखो अगर आपां कार का मुल मापना है उन्होंने मुद्रा च मापो, ठीक है। अगर आपां गां मझ दे बदले उन्होंने मुल करांगे तो आपां किवें डिसाइड कर सकते हैं? अगर मैं ये कहना कि लो जी मैं एक कार दे बदले ना मैं 4.5 गावां लवांगा, तो हुण 4.5 गावां किवें आणगीआं? पॉसिबल नहीं है। ता क्योंकि जदों वस्तु वटांदरा प्रणाली हुंदी सी, वस्तुआं कई तरह दी हुंदियां सी, सारियां वस्तुआं दा मुल जिहड़ा है वो अलग-अलग तरीके नाल मापिया जांदा सी, तां एक वस्तु दे बदले दूजी वस्तु किन्नी मिलेगी डिसाइड ही नहीं हो पाता सी। मतलब अगर कोई बंदा 10 किलो कनक दे रहा है उनके बदले किन्ने मीटर कपड़ा मिलेगा, या 50 किलो कनक दे के उनके बदले किन्ने लीटर दूध मिलेगा, आप कह ही नहीं सकते सी। क्यों? क्योंकि कोई लीटर च है, कोई मीटर च है, कोई किलो च है, कोई ग्राम च है, तो सारे दी मुल मापन इकाई जिहड़ी है वो अलग-अलग होया करदी सी, जिस करके लेन देन करने जिहड़े ने वो बड़े मुश्किल होया करते सी। फिर नंबर 4 ते ये हुंदा सी भी आपां मुल दा हस्तांतरण जिहड़ा है वो नहीं कर सकते सी। हस्तांतरण की हुंदा है? हस्तांतरण तुसी ये कह सकते हो कि जिहड़ा मुल है, जो वैल्यू है किसी भी चीज दी ओनू दूजी थां ते भेजना, भेजा ही नहीं जा सकता सी। मान लो मैं कहा कि अज की तारीख दे विच मैं एक घर दे विच बैठा फाजिलका दे विच, मैं कहा कि मैं ये फाजिलका दा घर छड्ड के चंडीगढ़ जाना है, तो हुण मैं कहा कि घर छड्ड के मैं चंडीगढ़ ले जावांगा, किवें पॉसिबल है? ठीक है। या मैं कहा कि मैं गावां चंडीगढ़ ले जाऊंगा या मज्झां मैं चंडीगढ़ ले जाऊंगा, हाउ इज इट पॉसिबल? तां की हुंदा है अजकल दे जमाने च आपां की करांगे, अगर मैं चंडीगढ़ जाना है तो मैं की करूंगा, मैं अपना घर बेचांगा, इहदे बदले पैसे कमावांगा, चंडीगढ़ गया उत्थे पैसे दिते ते नवा घर ले लिया। यानी जिहड़ा मुल है इस घर दा वो आराम नाल दूजी थां ते जिहड़ा है वो जा सकदा है, पर वस्तुआं दे रूप दे विच मुल नूं एक थां तो दूजी थां ते लेके जाना बहुत मुश्किल हुंदा सी, यानी कि मुल दा हस्तांतरण जिहड़ा है वो नहीं हो सकदा सी। फिर आपां ना एक टर्म यूज करते हैं, उन्होंने कहते हैं स्थगित भुगतान, ठीक है। स्थगित भुगताना दा ना होना। हुण इस स्थगित भुगतान जिहड़े ने ये बड़ी बारी अपने सामने शब्द आएगा स्थगित भुगतान। स्थगित भुगतान नूं आपां इंग्लिश विच कहते हैं डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स या स्थगित भुगतान किहड़े हुंदे ने जिहड़े एक टाइम तो बाद करने हुंदे ने। जिवें अगर मैं अपनी एग्जांपल लवां, मैं एक महीना स्कूल दे विच पढ़ाना तां जाके मैनूं तनख्वाह मिलदी है, यानी मैनूं जो तनख्वाह मिलदी है एक महीने दे बाद मिलदी है, वो की है स्थगित भुगतान है। हुण अजकल दा काम सीधा है भी मैं मुद्रा दे विच तनख्वाह लैनी है, हुण वो तां जो अज 50,000 ने महीने
50,000 ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸੇ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ 50 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਣ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਵੀ ਕਣਕ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਣਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਗਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਵੈਲਿਊ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕਣਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਣਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਦਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਮੁਦਰਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਓ ਥੈਂਕ ਯੂ।